again. A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. And today we are going to start our new chapter, that is chapter number 7, Urban Administration. So, before we read about in your earlier classes of political science, we read about Panchayati Raj system. Okay. After that, rural administration also. What is rural administration? How in rural areas things manages. Okay, but in this chapter we will talk about a bigger city. Okay, which is very bigger than a city, which is much bigger than a village and spread it out as compared to rural areas. ठीक है, as compared to village, a city is much bigger. A city has crowded markets. If you ever visited, like even our Bikaner is also a city. Okay, so Delhi is also a very big city. So it has crowded markets, many buses and cars, water and electricity facilities, traffic controls, and hospitals are there. So all these things, who did all these things? Okay, who make decisions for this? कि how electricity facilities will be provided, how we will control the traffic, and in which area which type of hospital should be there, and how many hospitals should be there. So all these plannings and decisions, who took all these decisions, who made all these decisions. So in this chapter we will talk about this only, urban administration. It means, if you want to know about what is the simple meaning of the term urban administration, it is management in city. Okay, so there is a little story. One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir, and Rehana were playing a game of cricket in the street. Shankar had bowled a good over, and although he nearly managed to get Rehana out, she was still batting. Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. Instead, Rihanna hit the ball so hard and so high that the street light broke. Rihanna screamed, "Oh no, look what I have done." Shankar said, "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out." Now, just like you guys, not in this covid situation, but उससे पहले आप क्या करते थे, आपके गली में जो फ्रेंड्स वगैरह होते थे, तो उनके साथ आप लोग स्ट्रीट क्रिकेट खेलते होंगे, किसी आप लोग ने खेला होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, तो माला और उसके फ्रेंड्स जो थे, शंकर, जहांगीर, रेहाना, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो अच्छे से खेल रहे थे। ठीक है, शंकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि रिहाना अभी भी आउट नहीं हुई है, वो बैटिंग कर रही है। तो शंकर ने फिर से ना बहुत एक बॉल थ्रो करते हैं, ठीक है, बहुत हार्डली हिट किया उस बॉल को, ठीक है, कि वो इजीली कैच हो सके। उसने इस टाइप की बॉलिंग की। और रिहाना जो है, रिहाना ने क्या किया, रिहाना ने उस बॉल को इतने हार्डली हिट किया कि वहां की स्ट्रीट लाइट जो है वो ब्रोक हो चुकी। तो रिहाना चिल्लाने लग गई, डर गई कि शिट, हमने तो स्ट्रीट लाइट जो है वो ब्रेक हो चुकी है। देन अगेन, आप लोग भी जैसे गेम्स वगैरह खेलते हो तो बीच में, ओ शिट, हमने तो ये रूल ही नहीं बनाया था। हाँ, बट ये रूल है कि जो भी स्ट्रीट लाइट को ब्रेक करेगा वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए ये हुआ। तो इस यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई कि मेनली कि रिहाना ने स्ट्रीट लाइट को ब्रेक कर दिया। ओके, but Mala, Jehangir, and Rihanna were more worried about what happened, and they told Shankar he would better stop thinking about the wicket. Last week they had broken Nirmala Mausi's window and had spent their pocket money to have it replaced. Would they have to dish out money again from their pockets? Who would they pay this to? To whom did the lights on the street belongs? Who changed them? Now the question arises. The obviously Mala, Jahangir, and Rihanna, they were worried about
दे वर वरिड कि ये जो स्ट्रीट लाइट ब्रेक हुई है, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा वरिड थे, बट स्टिल शंकर जो था कि उसको तो ये था कि हमने, यस रिहाना आउट हो चुकी है, वो इसके बारे में ज्यादा सोच रहा था। बट माला जहांगीर और रिहाना ज्यादा प्रैक्टिकली सोचते हुए बोल रहे थे कि अब स्ट्रीट लाइट ब्रेक हो चुकी है, हमने लास्ट वीक भी कौन मासी, निर्मला मासी जो है, उनकी विंडो को ब्रेक कर दिया, तो फिर हमने अपने एंटायर पॉकेट मनी यूज करते हुए उनके विंडो के लिए क्या किया, हमने पैसे दिए। तो बट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, हु वुड दे पे दिस टू, ये जो अगर पॉकेट इनको सही करवाना भी पड़े तो ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कौन ब्रेक करेगा, वो सॉरी उसके लिए प्रे कौन, उसके लिए पे कौन करेगा, हमें किसको पे करना है हमें ये स्ट्रीट लाइट को सही करवाने के लिए। साले जी की शॉप है तो उसी को ही। यस, सो सो ये क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम स्ट्रीट लाइट्स का जो भी बनेगा इसको हमें सही करवाना है, तो हमें इसके लिए पैसे किसे देने हैं, हु चेंज दैम, ठीक है, कौन चेंज करेगा। रिहाना's house was the closest and they ran and told her mother what had happened. Rihanna's mother said, I don't really know these things in great detail, but I do know what it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing these lights. The best person to ask would be Yasmin Khala. She just retired from the municipal corporation. Go and ask her, and Rihanna come back home soon. Now, रिहाना का घर पास में था, ठीक है, तो रिहाना अपने घर में गई और उसने अपनी मदर को बताया कि हमने खेल रहे थे, हमसे जो है स्ट्रीट लाइट ब्रेक हो गई है, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने बोला कि हमें इसके, रिहाना की मम्मी ने बोला कि मुझे इसके बारे में डिटेल्स में नहीं पता है, बट हाँ ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये जो सिटी की वो लाइट्स, रिप्लेसिंग लाइट्स और उन सब चीजों का देखभाल करती है, ध्यान रखती है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपने हिंदी में सुना ही होगा, नगर निगम, ठीक है, नगर निगम सुना है ना। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है सिटी के, वो ध्यान में रखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गई है तो उसे चेंज करवाना है, या जो भी पर्सन है। तो यास्मिन खाला जो उनके पास में रहती है, तो वो बोलते हैं कि वो रिटायर हुई है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहले काम करती थी, तो आप उनके पास जाओ और पूछो कि क्या करना चाहिए। Yasmin Khala lived in the same lane and she and Rihana's mother were good friends. The children ran to Khala's house and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once. When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, there is no one person that you can pay the money to. There is a big organization called the Municipal or Corporation that takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets and the market clean. Now, यास्मीन खाला के पास गए, यास्मीन खाला उन्हीं की गली में रहती थी, ठीक है, रेहाना की मदर और यास्मीन खाला बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो लोग, बच्चे उनके पास गए और उन्होंने बताया कि हम लोग खेल रहे थे तो हमसे स्ट्रीट लाइट जो है टूट गई, ठीक है, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। तो यास्मीन खाला हंस के बोली कि बेटा आप किसी भी एक पर्सन को पैसे नहीं दोगे, एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, वो ध्यान में रखती है कि एक पर्टिकुलर एरिया का, कि वहां पे स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गई है या फिर ब्रेक हो गई है तो उसे चेंज करवाना, गार्बेज का कलेक्शन की, कूड़े कूड़े का कलेक्शन हो गया, गार्बेज का कलेक्शन आपके स्ट्रीट से, बहुत बार आपने सुना होगा कि आपकी गली में वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एक गाड़ी आती है, तो वो कौन ध्यान में रखता है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही ध्यान में रखता है, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन हो गया, वाटर सप्लाई कैसी रहेगी, और स्ट्रीट्स और मार्केट क्लीन कैसे रखना है, ये सारी चीजें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ध्यान में रखती है। So I have heard about the municipal corporation. They have put up signs around the city to inform people about malaria, said Mala.
ठीक है। अब वन ऑफ रेहाना's फ्रेंड माला, उसने बोला मैंने सुना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, वो सिटीज में जगह जगह, अब देखो जब मॉनसून का टाइम होता है, जून जुलाई का टाइम होता है, तो अब उस टाइम पे मच्छर वगैरह काफी हो जाते हैं, तो मलेरिया डेंगू होने के चांसेस हैं। तो आप कभी देखते हो स्ट्रीट्स वगैरह में बड़े बड़े वो बैनर्स लगे हुए होते हैं कि हमें मलेरिया से कैसे बचना है, या फिर हमें गंदगी, हम साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में ऐसे जो आप पैम्फलेट्स देखिए, बैनर्स देखते होंगे ना, तो वो बैनर्स कौन लगाते हैं? वो म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही लगाती है। वो लोगों को इन्फॉर्म करती है कि हमें मलेरिया से हमें कैसे बचना है, हम कैसे क्लीनलीनेस रख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So Yasmin Khala said, yes, you are right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. It also runs schools, hospitals, and dispensaries, and makes gardens and maintains them, said Yasmin Khala. Then she added, our city, Pune, is a big city, and so here we call it municipal corporation. In smaller towns it is called a municipal council. Now municipal corporation is also responsible for taking care of schools, taking care of like uh, uh, they taking care कि how we should run the schools, hospitals, dispensaries, and how we they also make gardens and maintains them, right? एंड अगेन वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि हमारे सिटी में कोई डिजीज जैसे मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह, कुछ ऐसी डिजीजेस ना फैले, ठीक है। ये जो अब इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है वो कहाँ पे रहते हैं, वो पुणे में रहते हैं। तो पुणे एक बहुत बड़ी सिटी है, इसलिए हम यहाँ वहां पे उसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। बट जो स्मॉलर टाउन्स होते हैं वहां पे हम क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल काउंसिल। in smaller towns it is known as municipal council, uh, and in and in big towns, ठीक है, और big cities it is known as municipal corporation, right? तो ये ध्यान में रखना। So this is a story. Now take 2 minutes and think of at least 4 different tasks that the municipality does, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूंगी, जल्दी से सोचो म्यूनिसिपैलिटी क्या क्या करती है, सोचो इसके बारे में और बताओ मुझे। Next is the ward counselor and the administrative staff. So again, Yasmin Khala, I am curious, who decides where a park should go? Did you have to make interesting decisions like when you worked in the municipal corporation? Asked Rehana. Very interesting question. आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि मैम पार्क कहाँ बनेगा, ये डिसाइड कौन करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे बीकानेर में आपने सबने शिव वैली का नाम सुना होगा, ठीक है। तो एक डिसीजन लिया गया है कि शिव वैली में वहां पे एक पार्क बनेगा, तो ये डिसीजन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही लिया है, ठीक है। तो देखो यही क्वेश्चन अराइज हुआ है कि मैम पार्क जो है कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ बनेगा, कहाँ बनना चाहिए, ये जो डिसीजन है लेते कौन है, ठीक है। तो यास्मीन खाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वर्क कर चुकी है, तो उनसे रेहाना पूछती है। No, Rihana, I was working in the account office of the corporation, so I just work on pay slips. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillors. Now, just look at this statement. So there are a city is a very big place, right? So we need different types of staffs there for different work. For example, in a school there are different teachers and different staff members for different work, right? For different subjects you have different teachers. For accounts department we have different staff member for it, okay? So just like that, a city is a big place, ठीक है। A city is very large, so
for different different works there are different staffs or persons hired for that. So जो आपकी यास्मिन खाला है वो क्या है, उसने बोला कि मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वर्क करती थी बट मैं वहां के अकाउंट्स ऑफिस में वर्क करती थी, ठीक है। तो मैं कहाँ वहां के पे स्लिप्स जो होते थे उन पे वर्क करती थी। जो ये डिसीजंस लिए जाते हैं कि कहाँ पे आपके सिटी को क्लीन कैसे रखना है, पार्क कहाँ बनेगा, ये हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, ये सारे यूजुअली ये वाले जो डिसीजंस है वो कौन लेता है, वार्ड काउंसलर्स लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आपके बीकानेर में 2 स्कूल्स बनानी है तो हमें कहाँ कहाँ बनानी है, तो इसका डिसीजन कौन लेगा, इसका डिसीजन लेंगे वार्ड काउंसलर्स, जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो लेंगे, ठीक है। So the city is divided into different wards and ward councillors get elected. So आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कल मैं आपसे पूछूंगी, आपको अपने पेरेंट्स से, ठीक है, या फिर अपने पेरेंट्स हो गए, आपके गार्जियंस हो गए, या आपके एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर हैं, उनसे आप क्या ये क्वेश्चन पूछोगी, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, किसी से भी आप पूछ सकते हो कि आप कौन से वार्ड नंबर में रहते हो, ठीक है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। तो ये आपका होमवर्क है कि आपका वार्ड नंबर क्या है, ठीक है। नंबर प्लस आपके वार्ड का जो वार्ड्स में पार्षद होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यू हैव टू नो अबाउट द वार्ड नंबर्स कि आप कौन से वार्ड नंबर में रहते हो, राइट। सो एक सिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में, वार्ड्स मतलब क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सिटी, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को हमने डिवाइड कर दिया, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, 5, वार्ड 6, वार्ड 7, 8, वार्ड 9, 10, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को हमने क्या किया, वार्ड्स में डिफाइन कर दिया। सो द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues. For example, if bus stands need to be improved or a crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc., it is these committees for water garbage collection, for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. ठीक है। अब सिटीज को हमने डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया, बट कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से डिसीजंस होते हैं जो पूरे सिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके वार्ड में अगर सपोज थोड़ी सी सफाई नहीं है तो आपने अपने वार्ड काउंसलर को इन्फॉर्म कर दिया और उसने क्लीन करवा दिया, ठीक है। बट अब फॉर एग्जाम्पल पूरे बीकानेर सिटी में, अब जैसे आप रेलवे स्टेशन ले लो, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन के आसपास जो है वहां पे बहुत कूड़ा रहता है, वहां पे बहुत ज्यादा गार्बेज रहता है, और वहां से एक जो नाला या फिर जो ड्रेन है, ठीक है, जहां से गंदा पानी निकलता है, वो जो है कट हो चुका है, वहां से पानी बह रहा है। तो इसके लिए कौन डिसाइड करते हैं, जो ग्रुप ऑफ काउंसलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स के, वो कमिटी बनाते हैं, डिबेट करते हैं इन इश्यूज पे, ठीक है, डिस्कशंस करते हैं, और उसके बाद कोई मिल के एक डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो ये कमिटीज जो है कि वाटर सप्लाई, अब वाटर सप्लाई जो है अब पूरे एरिया के लिए होता है ना, पूरे एक सिटी के लिए है, गार्बेज कलेक्शन हो गया, स्ट्रीट लाइटिंग हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। तो ये कमिटीज जो बनी हुई है वो डिसाइड करेगी कि कौन क्या वर्क करेगा। सो when the problems are within a ward, when the people who live in the ward can contact their counselor. For example, if there are dangerous electrical wires hanging down, then the local counselor can help them get in touch with the electricity authority. ठीक है। For example, आपके वार्ड में, ठीक है, आपके घर के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स जो है हैंग कर रहे हैं, अब वो बहुत ज्यादा क्या है,
डेंजरस है ना, कोई भी बच्चा उस पे हाथ लगा देगा, ठीक है, या फिर कोई भी उस पे हाथ लगा दिया या टच हो गया तो वो तो एक डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लोकल काउंसलर को आप इन्फॉर्म करोगे और वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से टच में आके उस चीज को सही करवा सकते हैं। So, while the counselors committees and the counselors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. ठीक है, अब देखो काउंसलर्स तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस इश्यू पे क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, बट इम्प्लीमेंट कि हमें इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, वो कौन करता है, कमिश्नर होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होते हैं जो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो इनको इन वर्क को कंप्लीट करते हैं। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स आर अपॉइंटेड, काउंसलर्स आर इलेक्टेड। अब देखो जो काउंसलर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू, पर जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स हैं वो क्या होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक एग्जाम होता है, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यूज एंड ऑल सब कुछ होता है और उसके बाद हम उसको अपॉइंट करते हैं। बट जो काउंसलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, ना कि उनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना बेटा। जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, एक आपके पुलिस ऑफिसर है और एक आप समझ लो एक एमएलए है, तो एमएलए को हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, पुलिस ऑफिसर को क्या करते हैं, पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। So, how are these decisions made? Asked Rihanna, who never gave up on her train of thought. So, well, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. The ward councillors try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. These decisions are implemented by the administrative staff, said Yasmin Khala, enjoying the questions. ठीक है, अब रिहाना भी बहुत क्यूरियस है कि ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और जो यास्मिन खाला है उनको भी, वो भी इंजॉय कर रही है ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हुए। तो वो बोलती है, क्वेश्चन है, सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, इन डिसीजंस हम लेते कैसे हैं ये डिसीजंस। सो ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट, ठीक है, अब बजट भी तो होता है ना, पैसे नहीं है, पैसे भी तो पता होना चाहिए कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं, इतना ही बजट है, हमें इतने में काम करना है, तो वो बजट बनाते हैं कि हमें कितना मनी स्पेंड करना है अकॉर्डिंगली, कि हमें वाटर सप्लाई में कितना मनी स्पेंड करना है, हमें गार्बेज कलेक्शन में कितना करना है, ठीक है, ऐसे करते हुए वो एक बजट बनाते हैं। और जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम हर एक प्लेस को क्या करें, हम उसको इंश्योर करते हैं कि हम वार्ड्स की हर एक डिमांड को फुलफिल कर सकें, जो जो सुटेबल है वैसे हम वार्ड्स की डिमांड्स को फुलफिल करें। एंड उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स हैं वो इन जो भी हमने डिसीजंस लिए उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। सो यस, अब देखिए, इंजॉइंग दैट द चिल्ड्रन, अब यास्मिन खाला इंजॉय कर रही थी ये क्वेश्चंस को, कभी क्योंकि कोई भी किसी और ने कभी उनके जॉब के बारे में या उनके एक्सपीरियंस के बारे में इतना पूछा नहीं, तो उन्हें भी बच्चों को ये आंसर करते हुए अच्छा लग रहा था। But the city is so large, it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? Asked Shankar curiously. He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. So next question arises, our city is so large and it must take a lot of people to look after it. So does the municipal corporation have a lot of workers? ठीक है, वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। सो ही सेड यस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो देयर इज द वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर द गार्डन्स,
another to look after roads. I worked on accounts in the sanitation department, said Yasmin Khala, and then went on to offer the children some kebabs to eat. देखिए अब यास्मीन खाला बोलती है यस, जो वर्क है सिटी का वो डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कि वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स गार्डन्स को लुक आफ्टर करने के लिए डिपार्टमेंट्स, रोड को लुक आफ्टर करने के लिए डिपार्टमेंट्स, और अकाउंट्स देखने के लिए डिपार्टमेंट। तो यास्मीन खाला सैनिटेशन डिपार्टमेंट में जो वॉशरूम्स और बाथरूम्स होते हैं उसकी क्लीनलीनेस पे वर्क करती थी, उनके अकाउंट्स में क्लीन करती थी, उसको हम सैनिटेशन बोलते हैं, जो बाथरूम्स और वॉशरूम्स को क्लीनलीनेस का, जो क्लीनलीनेस के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, जहांगीर एट his kebabs at top speed and as he waffled them down asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects to go? आप लोग के भी दिमाग में ये आता होगा कि मैम जो हमारे घर से तो कचरा ले जाते हैं ये लोग, पर ये लोग कलेक्ट कहाँ करते हैं? The others were still eating when Yasmin Khala began to answer. This question has an interesting answer. As you know, you can usually find garbage lying all over the street. Earlier, even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected, it attracts dogs, rats, and flies. Also, people get ill from the smell. At one point, things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they would get sick from staying on the streets too long. So, देखिए, अब यास्मीन खाला बोलती है कि पहले तो जो स्ट्रीट था, यूजुअली तुम देखते हो कि बहुत जगह स्ट्रीट्स में जो है कूड़ा, गार्बेज मिलता है। पहले तो आसपास में भी बहुत ज्यादा, हमारे नेबरहुड में भी बहुत कचरा पड़ता था, और जब इसको हम कलेक्ट नहीं करते हैं तो ये बहुत से डॉग्स को, रैट्स को, फ्लाइज को क्या करती है, अट्रैक्ट करते हैं, और वहां पे लोगों के बीमार होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है, और बच्चे भी नहीं खेल पाते हैं because their parents were afraid that they would get sick from staying on the streets too long. अब उनको लगता है कि स्ट्रीट में तो इतना कचरा है, तो अगर वो बच्चे बाहर जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, उनके पेरेंट्स को लगता है कि वो बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी देखिए, ये एक पिक्चर गिवन है, recycling is not a new thing. People like the man in the photo above have been recycling paper, metal, glass and plastic for a long time. The kabadiwala plays a major role in recycling household plastic and paper including your notebooks. अब देखो, बहुत आप लोग के घर पे भी ऐसे सफाई वगैरह होती है, तो बुक्स, न्यूज़पेपर्स या जो यूज प्लास्टिक्स या बॉटल्स वगैरह होते हैं, हम कबाड़ी वाले को क्या करते हैं, बेच देते हैं ना। तो ये क्या है, वो रिसाइकल करते हैं फिर से उस प्रोडक्ट का यूज करने के लिए, मेटल का यूज करने के लिए। तो जो कबाड़ी वाला हो गया आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हाउस होल्ड प्लास्टिक्स और पेपर होते हैं, जो वो हमारे घर से एक तरीके से हमारे लिए तो वो कचरा ही हो गया, गार्बेज ही हो गया ना, तो उसको क्या करते हैं, वो कबाड़ी वाले लेके जाते हैं और वो कलेक्ट करते हैं, और मेटल की जगह रहता है, न्यूज़पेपर की जगह रहता है, और उनको क्या करते हैं, वो रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब वैसे ही जो आपका बोला जाता है कि गीला कचरा अलग रखो या ये सारी चीजें, तो उसको क्या किया जाता है, कंपोस्ट भी बनाया जाता है उससे, ठीक है। अब कुछ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, तो कब कुछ चीजों को लैंड फिलिंग कर दी जाती है, कुछ चीजें क्या कर दी जाती है, बर्न कर दी जाती है वो गार्बेज कलेक्शन में, ठीक है। सो देयर इज fill in the blanks in the sentences below, ठीक है। सो इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, वी ऑलरेडी डन दिस, so this is your homework. In our next class I will ask you the answer about these 6 fill-ups, okay. So in a panchayat the elected members are called dash, the city is divided into several dash, in a municipal corporation the elected members are called dash, groups of councillors deal with issues that affect the dash,
Elections are held once every dash years for the panchayat as well as for the municipality. While the councillors make decision, the administrative staff led by the commissioner dash these. So this is your homework. You have to complete these sentences, okay? And please go through the content which we have studied today. This is all about today. Thank you so much for joining the class, everybody. Take care of yourselves. We will meet in our next class.